Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to L3, lecture number 3 of this regular batch GST portion, guys. आज हमें चैप्टर नंबर 1 को अलविदा करना है, चैप्टर नंबर 1 को खत्म करना है. I hope each and every one of you is doing well. And let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session. हम लोगों ने जो पिछले सेशन में किया उसको हम रिवाइज करेंगे और आज हमें इस चैप्टर को अलविदा करना होगा, guys. No matter how long the session goes, be it 1 hour 30 minutes, be it 2 hours or be it 2 hours 30 minutes, हम लोग दोस्तों इस पूरे चैप्टर को आज खत्म कर ही मानेंगे. पिछले सेशन में दोस्तों what we did was the journey of GST in India, which started in the year 2000 when Mr. Atal Bihari Vajpayee Sahab, the then Prime Minister, designed a GST model. Followed by 2004, Kelkar Task Force was built, and they said that we should replace the existing tax regime with GST. With the then Union Finance Minister in 2006, Mr. P. Chidambaram said that we'll apply GST, we'll get GST introduced in India by the 1st of April 2010. In 2009, FDP came out. In 2011, 115th Amendment Bill was presented in the Parliament. However, it subsequently lapsed. The turn in the tides came in 2014 when BJP Sarkar came into power with their alliances called NDA, guys. And Constitution 122nd Amendment Bill was presented in the Parliament in December 2014. 2015, it got passed in Lok Sabha, basically on the 6th of May 2015. Followed by in the year 2016, on 3rd August 2016, it got cleared in Rajya Sabha, and finally on 8th September 2016, it received the assent of the President, and it became 101st Constitutional Amendment Act 2016. The GST Council was also notified by the 12th of September 2016. आज हम GST Council से जुड़ी हुई बातचीत भी करेंगे, guys, in constitutional provisions. March 2017, GST Council recommends the CGST, SGST, IGST, UTGST and Compensation Cess Act. April 2017, CGST, IGST, UTGST Act passed and Compensation Act also passed. May 2017, GST Council recommends all the rules, and by the 30th June 2017, all states except J&K passed their respective SGST Act also. 1st July, GST was launched into India. J&K was not left far behind, guys. J&K also accepted GST by the 8th of July, and CGST and IGST ordinances promulgated to extend GST to J&K. France is the first country in the world to implement GST. This is what the history was of GST was. Now we head on to the deficiencies of the old taxation system that actually led to GST in India. And सबसे पहले दोस्तों क्या था इसमें? कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, गाइस. टैक्स पे टैक्स लगता था. क्यों? क्योंकि सर मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगता था और एक्साइज ड्यूटी के बेचने के बाद वैट लगता था. तो वैट वाज डिवाइड ऑन एक्साइज ड्यूटी. सेकेंडली सर, जब मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से वो रिटेल स्टेज पर आ जाता था, मतलब प्रोडक्ट में आगे अब कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर आता था, तो एक्साइज ड्यूटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता था. एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था टू द नॉन मैन्युफैक्चरर. So वो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता था, लीडिंग टू कैस्केडिंग इफेक्ट. Followed by, guys, the other example of cascading of taxes was interstate purchase. Under the old taxation system, the originating state used to collect tax. तो अगर किसी इंसान ने दूसरे स्टेट से टैक्स खरीदा है, तो दूसरे स्टेट के पास टैक्स चला गया, उसके स्टेट वाला उन्हें क्रेडिट नहीं देता था. मल्टीपल टैक्सेस, स्टेट ही अलग अलग तरीके के टैक्सेस लगाती थी लेकिन आपस में क्रेडिट नहीं देती थी. नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स. वैट एक स्टेट सब्जेक्ट था, सर्विस टैक्स सेंट्रल सब्जेक्ट था. तो क्योंकि अगर किसी इंसान ने वैट पे किया और आगे से सर्विस टैक्स कलेक्ट किया, तो वैट वाज नॉट अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ सर्विस टैक्स एंड वाइस वर्सा आल्सो. सर्विस टैक्स अगर आपने पहले पे किया और वैट कलेक्ट किया है, तो सर्विस टैक्स का भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता था फ्रॉम द वैट लायबिलिटी दैट यू हैव कलेक्टेड, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट बढ़ते चले जाते थे क्योंकि आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिल रहा है. दोनों अलग अलग सरकार दोस्तों इसका पैसा वसूलती थी और आपस में क्रेडिट नहीं मिलता था. एंड द लास्ट पॉइंट दैट केम वाज डबल टैक्सेशन. कुछ प्रोडक्ट्स
या कुछ चीजों पे सरकार के दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई चल रही थी कि ये गुड्स है या सर्विसेज है, तो फाइनली दोस्तों इस पर दोनों ही टैक्सेस लगते थे, क्योंकि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। और आप लोग जानते हैं भारत देश में कोर्ट कचहरी लंबे लंबे सालों तक चलता है, लेकिन तब तक पिसाई किसकी होती थी दोस्तों? पिटता दोस्तों हमारा आम ग्राहक था। All right, guys. So this was a quick recap of what we did into the preceding session. We are already done with the first 7 minutes. तो हमारे 5 से 7 मिनट में ही दोस्तों रिवीजन होता है, वो हम लोगों ने कर लिया है। नाउ कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, आज का सेशन कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। खैर जो यहां पर मैं आपको बताऊं, ये जो आपके 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में थोड़ा मोटा डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, उसमें आपको कोई ऐसी चीज नहीं पता चलेगी जो बिल्कुल न्यू हो। ये आप लोग दोस्तों ऑलरेडी इन द प्रीसीडिंग 2 सेशंस पढ़ चुके हैं। हाँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा नया सा, चलो देखते हैं। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, बिल्कुल सही सर। जीएसटी इज वैट, वैट तो पुराना टैक्सेशन सिस्टम था ना, वैट को ही तो वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे। डू नॉट गो ऑन टू द लिटरल इंटरप्रिटेशन गाइस, अंडरस्टैंड द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी वैल्यू एड होती जा रही है उस पर जाकर ही जीएसटी का कंपोनेंट आफ्टर ऑल जा रहा है। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। एज इट ऑफर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर टू रिटेलर बाय अलाउइंग सेट ऑफ, जीएसटी आपको सेट ऑफ अलाउ करता है ऑफ टैक्सेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। टैक्सेस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, चाहे आपने इंट्रा स्टेट परचेज किया हो या इंटर स्टेट परचेज किया हो, आपको हर तरीके से क्रेडिट मिलेगा। विद टैक्स कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जब आपने आगे सामान दिया, सर्विसेज दी और आगे से जो टैक्स कलेक्ट किया, उसमें से आपको पहले जितना आप टैक्स पे कर आए हो उसका क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो विद इन द सेम स्टेट हो या इंटर स्टेट हो। पहले इंटर स्टेट परचेज के केस में जो इंटर स्टेट पर दिया गया टैक्स था उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, जीएसटी में वो मिलेगा। thereby taxing only the value added at each stage of supply chain। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा लॉजिकली और समझते हैं गाइस। लेट्स से मैं आपका होस्ट और दोस्त श्री राठी, ठीक है ना, मैंने सामान बेचा है दोस्तों टू T2। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल बनाऊंगा दोस्तों, और उस एग्जांपल के थ्रू यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। सामान की वैल्यू लेट्स से अगर 100 रुपीज थी और इस पर दोस्तों जीएसटी लगा, इस पर जीएसटी लगा एट द रेट 18%, 18% जीएसटी लगा, 18 रुपए। तो टोटल 118 रुपए का ये T2 को सामान पड़ा, जिसमें से 100 रुपए प्रोडक्ट का था और 18 रुपए का इज व्हाट ही हैज पेड एज जीएसटी। लेकिन क्या 18 रुपए का T2 को, 18 रुपए का क्या T2 को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, हाँ या ना? The answer to which is yes, input tax credit जरूर मिलेगा। अब now my question to you guys is, जब T2 इस सामान को आगे बेचता है let's say to Mr. A, T2 ने इस सामान को आगे बेचा मिस्टर A को for a value of let's say 180 रुपीज, 180 रुपए का सामान बेचा, 180 का, और 180 पर अगेन उसने जीएसटी लगाया, 18% के हिसाब से निकल कर आया 32.4। मैं इसे राउंड ऑफ कर रहा हूं दोस्तों, जीएसटी 32 रुपीज। Now, total amount that Mr. T2 collected from Mr. A is 212 rupees, 212 रुपए T2 ने मिस्टर A से कलेक्ट किया है। अब T2 कितना जाके पे करता है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। व्हाट इज द अमाउंट दैट T2 विल गो एंड पे टू द गवर्नमेंट? T2 जाकर सरकार को कितना पे करेगा सर? T2 जाके गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, यही तो सिखाया था, बिल्कुल वही करने बोल रहा हूं मैं। 32 माइनस 18 गाइस निकल कर आता है 14 रुपए, जाके T2 सरकार को जमा कराएगा। अब सरकार भी यही कहने की कोशिश कर रही है। सरकार क्या कह रही है, ध्यान से देखना, कहते हैं राठी जी आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट था। मैंने कहा हाँ जी 100 रुपए का प्रोडक्ट था जो आपने T2 को बेचा। T2 ने इसे 180 रुपए का बेचा, हाँ जी T2 ने 180 रुपए का बेचा। तो T2 ने कितनी वैल्यू ऐड करी इन द प्रोडक्ट? T2 ने कितनी वैल्यू ऐड करी इन द प्रोडक्ट? 80 रुपए ऐड करी, 80 रुपीज। कह रहे ठीक बात है, 80 रुपए ऐड करा, और 80 रुपए का अगर आप 18% निकालो तो 14 रुपए निकल कर आएगा। इसका आप 18% निकालो गाइस, कितना निकल कर आ रहा है? देखो भैया 80 इंटू 18%, 14.4, राउंड ऑफ करके 14,
तो इन दिस सिनेरियो गाइस, ये जो 14 रुपए आपने, ये T2 ने जाके सरकार को पे करे, उतना ही T2 ने वैल्यू एड करी थी, इसीलिए से वैल्यू एडेड टैक्स भी बोला जाता है। लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स पुराने टैक्सेशन सिस्टम वाला वैट के नाम से मत जोड़िएगा। वैल्यू एडेड टैक्स इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट हैज बीन एडेड टू द प्रोडक्ट और द सर्विस, कि कितना प्रोडक्ट की वैल्यू में जोड़ा। 100 रुपए का प्रोडक्ट T2 ने खरीदा था, उसने 80 रुपए जोड़े, तो 80 रुपए का टैक्स जाकर ही सरकार को वो T2 पे करता है, प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? आया ना? मजा आया इस पॉइंट को? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है गाइस। तो इसीलिए से बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, की जितनी वैल्यू ऐड होती जाती है उससे जुड़ा हुआ टैक्स जाकर जो हमारा बंदा होता है, रजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो जाके सरकार को पे करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता। ये दोस्तों एक जो डीमेरिट था, एक जो डेफिशिएंसी थी ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, उसको ठीक करते हुए बोला गया है कि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जब गुड्स को बेचा जाता था तो वैट लगता था, इंटरस्टेट में सीएसटी लगता था, और सर्विसेज दी जाती थी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में तो सर्विस टैक्स लगता था। तो सर्विस टैक्स में से वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था और वैट में से सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। यहां पर सरकार ने बिल्कुल ऐसा मना कर दिया। सरकार ने कहा, जो मैंने अपना एग्जांपल लिया था ना दोस्तों, कि मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोला और कोचिंग सेंटर में जब मैं बच्चों को कोचिंग देता था तो मैं उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता था। आई यूज्ड टू कलेक्ट सर्विस टैक्स। हाउएवर दोस्तों, जब मैं दोस्तों गुड्स खरीदता था तो उस पर मैं वैट पे करता था, तो मेरे को आप वैट का क्रेडिट नहीं दिलवा पाए थे, बिकॉज वैट बिलोंग्ड या वैट वेंट इनटू द पॉकेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, whereas service tax belongs to the central government. So central government did not allow the credit of VAT from the tax liability of service tax. However guys, in GST law, अब आज जब GST लॉ आता है, ध्यान से देखिएगा, मैं अगेन अपना एग्जांपल बनाता हूं। आज की तारीख में मैं आपका होस्ट दोस्तों श्री राठी, विद द नेम श्री राठी क्लासेस। मैं आज भी दोस्तों कुछ गुड्स खरीदता हूं इन ऑर्डर टू रन माई क्लासेस। मैं अपनी क्लासेस को चलाने के लिए क्या खरीदता हूं दोस्तों? गुड्स खरीदता हूं। सही बात है कि नहीं है? और ये जो मैंने गुड्स खरीदे दोस्तों, इस पर मैंने जो जीएसटी पे किया उनका नाम क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है। जबकि दोस्तों जो मैं आगे सर्विसेज दे रहा हूं, जो मैं आगे प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सर्विसेज है, लेकिन उन पर मैंने कलेक्ट क्या किया? उन पर जब मैंने सर्विस दी तो सर्विसेज पर मैंने कलेक्ट क्या किया? सर्विसेज पर सर आपने भी सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया। अब क्या दोस्तों, जो सीजीएसटी मैंने कलेक्ट किया ऑन सर्विसेज, उसमें से क्या सीजीएसटी माइनस कर सकते हैं जो मैंने पे किया है ऑन गुड्स? सरकार ने अलाउ कर दिया। क्या आप एसजीएसटी में से एसजीएसटी वाला माइनस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप इसे माइनस कर सकते हैं। लेकिन सर व्हाट इफ द रेट ऑफ टैक्स इज डिफरेंट? ओके, दैट्स आल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट गाइस। चलो उससे जुड़ा हुआ भी एक एग्जांपल कराता हूं। व्हाट इफ द रेट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स की रेट ऑफ टैक्स अलग होगी, सर्विसेज की रेट ऑफ टैक्स अलग होगी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है देखना दोस्तों। मगर फिर भी क्योंकि आपका एक जेन्युइन डाउट बना है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त श्री राठी क्लासेस का ओनर श्री राठी। मैंने अगर कोई गुड्स परचेज करे ऑफ अ वैल्यू ऑफ, लेट्स से ऑफ अ वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज, जिस पर जीएसटी लगा एट द रेट 12%, तो कितना आया? 1 लाख का 12%, 12,000 रुपीज निकल कर आया, टोटल निकल कर आया 1,12,000 रुपीज। फेयर एनफ गाइस, ठीक है ना? या मैं अगर इसको और डिटेल में कराऊं तो मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लिखता हूं। इधर देखिएगा गाइस, इस पे सीजीएसटी लगा एट द रेट 6%, 6,000, टोटल 12% ही निकलेगा गाइस। एट द रेट एसजीएसटी, मतलब एसजीएसटी एट द रेट 6%, 6,000, तो टोटल निकल कर आता है 1,12,000 रुपए, 1,12,000 रुपीज टोटल निकल कर आता है। मूविंग ऑन गाइस, जब श्री राठी क्लासेस ने आगे सर्विसेज दी टू हिज मल्टीपल स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चों को मैंने सर्विसेज दी। यहां पर मैंने रंग बिरंगे बच्चे बना देता हूं। हा देखो तो एक दोस्तों
हरा है, एक नारंगी है, एक पीला है। हाँ जी गाइस, तो अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को दोस्तों ये सर्विसेज दी हैं और आप लोगों ने मुझे फीस दी। तो जो फीस मेरे को मिली, लेट्स से 1,40,000 रुपीज की फीस मिली और इस पर 18% जीएसटी लगा, तो सीजीएसटी लगा @9%, तो 1,40,000 का 9% निकल कर आता है 12,600। और एसजीएसटी लगा दोस्तों, एसजीएसटी लगा @9% गाइस, 12,600, 12,600। टोटल कितना निकल कर आया गाइस? 1,40,000 इसमें अगर जोड़े तो निकल कर आता है 1,65,200, 1,65,200। नाउ व्हाट विल आई बी डूइंग? मेरे को क्या करना है दोस्तों? इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कि मैं जाके सरकार को टैक्स जमा कराऊंगा। आई विल डिपॉजिट टैक्स टू द गवर्नमेंट। और वो टैक्स कितना होगा गाइस? टैक्स कितना होगा मेरे को बताइएगा गाइस? टैक्स टू बी डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट। यहां पर दोस्तों उसको मतलब ही नहीं है कि क्या रेट है, उसको मतलब ही नहीं है कि आपने क्या गुड्स पे कलेक्ट किया, क्या सर्विसेज पे कलेक्ट किया। यहां तो वो क्लियरली बोलते हैं CGST कितना जमा कराओगे? जितना आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था 12,600 माइनस जितना आप पहले पे कर आ गए 6,000 रुपए, मतलब 12,600 में से 6,000 रुपए माइनस हुआ तो आपका निकल कर आता है 6,600। दूसरा नेक्स्ट SGST आता है, दूसरा भी 12,600 माइनस 6,000 रुपए, तो आपका कितना निकल कर आया? 6,600 रुपए निकल कर आया, 6,600 रुपए। सिंपल। आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कलेक्ट करते वक्त आपने 9% कलेक्ट किया और आईटीसी आपका 6% का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जो आगे प्रोवाइड करी वो सर्विसेज थी, जबकि जो पीछे खरीदे वो गुड्स थे। इसीलिए दोस्तों जीएसटी में जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस वाला सिनेरियो थे वो सब अब लगभग खत्म हो गए हैं गाइस। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आ जाओ भाई नेक्स्ट। तो कहते हैं जीएसटी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज एंड दस द टैक्सेस पेड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेस कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड वाइस वर्सा। As credit is allowed in all manner, there is no cascading of taxes. कोई cascading of taxes नहीं होता. Next, the supplier at each stage passes on the tax burden to another. ये तो अपन जानते ही हैं दोस्तों. This is the point जो अपन पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सप्लायर जो होता है दोस्तों वो टैक्स बर्डन पास ऑन कर देता है टू द फाइनल कंज्यूमर. सिंस द फाइनल कंज्यूमर यूजेस द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उसे बर्डन बियर करना पड़ता है. ही कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन टू एनीवन एल्स एंड thus हैज टू बियर द ब्रंट ऑफ टैक्स. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? कहते हैं द सप्लायर एट ईच स्टेज पासेस ऑन द टैक्स बर्डन, वो टैक्स बर्डन पास करते हैं टू अनदर पर्सन. However, दोस्तों फाइनल कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज कर लेता है एंड क्योंकि उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया जाता है दोस्तों, सरकार ने बोला कि भाई साहब बर्डन विल स्टे ऑन द कंज्यूमर. आ जाओ भाई. बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, आई डोंट थिंक सो दोस्तों उसमें मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है. कंज्यूमर क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट को यूज कर लेता है, वो आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं करता, तो व्हाट हैपेंस टू द टैक्सेस दैट ही हैज पेड, वो उसी के ऊपर रह जाते हैं, बर्डन उसी के ऊपर रह जाता है. बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. हाँ जी गाइस. अब दोस्तों क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अगर कोई इंसान प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर बेचता है, तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में आपको एक्साइज ड्यूटी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, उसके साथ आपको स्टेट के वैट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, आपको अलग अलग रिटर्न्स भरनी पड़ती थी, टैक्स जमा कराना पड़ता था, अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते थे, जिसकी वजह से दोस्तों आप अपने काम से ज्यादा फोकस तो कंप्लायंसेस पर रखते थे.
दो चार बंदे तो इसलिए हायर कर रखे थे क्योंकि हमारा कोई भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फेल ना हो जाए, क्योंकि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फेल होगी तो इंटरेस्ट पेनल्टी देना पड़ेगा। कहते हैं कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट्स, कॉमन प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा। जीएसटी विल रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स, जीएसटी आपके इकोनॉमिक बैरियर्स को दोस्तों खत्म कर देगा। तो अब जीएसटी में क्या है, कॉमन टैक्स रेट्स हैं पूरे देश भर में। मोबाइल फोन पर लेट्स से 18% है, तो हर पूरे देश में 18% है। पहले क्या होता था ना दोस्तों, टैक्स रेट को लेके बड़ी लड़ाइयां होती थी। क्यों? क्योंकि स्टेट के पास पावर थी। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मुझे मोबाइल फोन, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अगर मुझे मोबाइल फोन खरीदना पड़ता था, तो मैं अगर नोएडा में रहता हूं, मैं एक्चुअल में नोएडा में रहता हूं, और मैं जानता हूं कि मेरे पास फरीदाबाद है जो हरियाणा में है, मेरे पास दिल्ली है दोस्तों, और मैं खुद यूपी में रहता हूं, तो मैं क्या करता था, ऑनलाइन चेक करता था कि भैया कौन से स्टेट में कम रेट है। पता चले ये फोन 50,000 रुपए का मेरे स्टेट में मिल रहा है, दिल्ली में 52,000 का मिल रहा है, और हरियाणा में 46,000 का मिल रहा है। अब मैंने कहा यार हरियाणा तो मेरे यहां से 15 किलोमीटर ही दूर है, मैं क्यों ना फरीदाबाद चले जाऊं जो कि एक्चुअली 15 किलोमीटर दूर है, और फरीदाबाद में घुसते ही जो दुकान मिलेगी उससे मैं 46,000 का ले लूंगा। 15 किलोमीटर आना जाना में 300-400 रुपए लगेंगे, लेकिन कम से कम 4,000 रुपए तो मैं बचा पाऊंगा। तो इससे क्या होता था कि यूपी वाला बंदा बगल वाले स्टेट में जाके सामान खरीद कर आ जाता था। अब जब योगी जी को पता चला यार यूपी वाला बंदा तो वहां जा रहा है, तो योगी जी ने क्या किया, वैट की रेट अपने स्टेट में गिरा दी। वैट की रेट अब अपने स्टेट में गिरा दी, जिसकी वजह से अब मोबाइल फोन यूपी में 45,000 का ही मिल रहा है, 46 नहीं 45 का ही मिल रहा है। तो अब दिल्ली वाले, हरियाणा वाले यूपी आ रहे हैं। अब दिल्ली वाले सोच रहे हैं अरे यार हमारे यहां से तो कोई फोन ही नहीं खरीद रहा, दिल्ली वाले ने रेट गिरा दिया, दिल्ली वाले ने रेट गिरा के कर दिया 42,000। तो क्या होता था दोस्तों, स्टेट्स के बीच में बहुत लड़ाई चलती थी रिगार्डिंग द टैक्स रेट्स, रिगार्डिंग द टैक्स रेट्स। सरकार ने उन टैक्स रेट्स को दोस्तों यहां पर अंडर द जीएसटी पूरे भारत देश में कॉमन रखा है, लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? नेक्स्ट, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग। अब आप कैस्केडिंग पढ़ चुके हैं दोस्तों, टैक्स ऑन टैक्स लगता था पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, हमने उसे मिटिगेट किया है, खत्म करने की कोशिश करी है। इल इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि भैया कैस्केडिंग की वजह से टैक्स ऑन टैक्स लगता था, जिसकी वजह से प्रोडक्ट महंगा होता था। लेकिन पुराने टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि इतने अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम थे, और आप लोग देख सकते हैं 15 टैक्सेस सेंट्रल और स्टेट मिलाकर भारत देश में सब्ज्यूम कर दिए गए अंडर जीएसटी 1। मतलब 15 टैक्सेशन सिस्टम को खत्म, 15 टैक्सेशन लॉ थे उसको खत्म करके सिर्फ एक जीएसटी लाया गया। तो 15 taxes central and state have been subsumed into single tax. Set off of prior stages allowed from the transaction across the entire value chain. आपको set off मिलेगा, मतलब ITC, input tax credit will be allowed to be reduced from the output tax liability. This will improve competitiveness and improve liquidity of business. इससे आपका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। ठीक है जी, अच्छी बात है। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू गाइस, बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ गाइस। कई बच्चे सोचते हैं सर इंक्रीज कैसे हुआ, पहले तो 15 टैक्सेस में से 15 टैक्सेस से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, 15 टैक्स लॉस थे अलग अलग, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, सीएसटी, अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम थे राठी जी, और हर टैक्सेशन सिस्टम से पैसा आ रहा था। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 15 टैक्सेस में से हमने एक टैक्स कर दिया और एक टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है? जी हाँ, क्योंकि जो 15 टैक्सेशन सिस्टम थे उनमें बहुत लूप होल्स थे। ऐसा नहीं था कि 15 टैक्सेशन सिस्टम से पैसे नहीं आ रहे थे, लेकिन सिग्निफिकेंटली कम आ रहे थे एज कंपेयर टू व्हाट द गवर्नमेंट इज रिसीविंग अंडर द जीएसटी लॉ। क्योंकि जो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में दोस्तों आपके जो कमी पेशियां थी, जिसे लोग इस्तेमाल कर करके कम पैसा देते थे दोस्तों, उसे दोस्तों यहां पर ठीक किया गया। कहते हैं विद वाइडनिंग ऑफ द टैक्स बेस एंड इंप्रूवमेंट इन टैक्स पेयर्स कंप्लायंस, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज।
और मैं आपको यह बता दूं कि 15 टैक्सेस हटाकर या 15 टैक्सेस खत्म करके जीएसटी नहीं लाया गया है, 15 टैक्सेस की जगह जीएसटी लाया गया है। पहले दोस्तों अगर सामान बेचते थे तो वैट लगता है, अब जीएसटी लगता है। पहले जब एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देता था तो सर्विस टैक्स लगता था, अब जीएसटी लगता है। पहले अगर एक जगह से, एक स्टेट से दूसरी जगह, एक दूसरे स्टेट में बेचा जाता था तो सीएसटी लगता था, अब जीएसटी लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन टैक्सेस को बिल्कुल ही हटा दिया, मतलब हटा दिया गया है, लेकिन उनकी जगह जीएसटी आ गया। इसीलिए द वर्ड सब्ज्यूम्ड हैज बीन यूज्ड। जो आप आगे पढ़ेंगे ना, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये अलग अलग तरीके के टैक्सेस हैं जिन्हें सब्ज्यूम करके दोस्तों आप भारत देश में जीएसटी लाए हो। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। दोस्तों जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, डबल टैक्सेशन होता था, आप लोगों ने देखा था ना रेस्टोरेंट पे दोस्तों डबल टैक्सेशन होता था, वो सब अब दोस्तों खत्म हो गया, अब सब की जगह एक ही है। तो जो मल्टीपल टैक्सेस होते थे जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, गाइस, वो सब खत्म होकर अब क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है। दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो आम जनता के लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाईली डिस्प्यूटेड इशू रिलेटेड टू डबल टैक्सेशन विल बी टैकल्ड। हाईली डिस्प्यूटेड इशू, जैसे कि रेस्टोरेंट को लेके हाईली डिस्प्यूटेड इशू था, अब उसे टैकल कर लिया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये क्या है सर? देखो, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अगर कोई आउटसाइड इंडिया से इंडिया आता है कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, या इनफैक्ट कोई इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहता था, तो इससे क्या होता था, जब पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कोई आउटसाइड इंडिया से इंडिया आया, लेट्स से मिस्टर एंड्रयू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा और एनी अदर कंट्री एज द केस में भी, वो अगर हिंदुस्तान आते थे तो मिस्टर एंड्रयू को बोला जाता है, एंड्रयू जी please get yourself registered under the excise department because you will be manufacturing product in India. कहते हैं ठीक है, वहां एक्साइज में जाके ओके आई विल गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट में घुसे थे दोस्तों, और जब घुसे तो एक सज्जन आदमी की तरह घुसे हुए थे, शर्ट टकिन वगैरह थी, अच्छे से बेल्ट वेल्ट लगा हुआ था, शर्ट ट्राउजर बेल्ट, बाल बने हुए, और जब तक बाहर निकले कहते हैं मुझे बचाओ मुझे बचाओ, रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन बाल पूरे बिखर गए हैं, शर्ट वर्ट के एक दो तो बटन टूट गए दोस्तों। अब कहते हैं अब तो काम कर लें दो भैया, कह रहे हैं हाँ जी आज रेस्ट ले लो, कल वैट डिपार्टमेंट में जाना है, कल आप वैट में जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। कहते हैं नहीं हमें एयरपोर्ट भेज दीजिए, हम तो अपने घर चले जाएंगे वापस। अरे यार आप किसी देश में जा रहे हो और उस देश में जाके आपको पता चलता है कि इतने टैक्सेशन सिस्टम है, और उन टैक्सेशन सिस्टम को फॉलो करे बगैर आप उस देश में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उस देश में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, सामान नहीं बेच सकते, तो कहीं ना कहीं आप उस देश में जाने से झिझकोगे। You would not like to go into a country where the taxation systems are not liberal, where the taxation systems are not simplified, where the taxation systems are not that great. तो इन दैट केस सरकार ने कहा भैया पुराने टैक्सेशन सिस्टम को देख के हिंदुस्तानी घबरा जाता है, फॉरेनर तो बिल्कुल ही दम तोड़ देगा। तो इस वजह से दोस्तों भारत के टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाइड टैक्सेशन सिस्टम करना है। एंड देयरफॉर गाइस कहते हैं विद यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉर इंडिया, जीएसटी विल गिव बूस्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मेक इन इंडिया कैंपेन। जीएसटी क्या करेगा दोस्तों? मेक इन इंडिया कैंपेन करेगा, बढ़ोतरी देगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ोतरी देगा। ओके गाइस, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग जीएसटी इन इंडिया? फटाफट बताइए सर। कुछ बेनिफिट्स तो वो हैं जो कल हमने डीमेरिट्स पढ़े, जैसे हमने डीमेरिट्स क्या पढ़ा कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता है, पढ़ा था आप लोगों ने, और यहां उसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? यहां उसका बेनिफिट क्या है? मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग। क्या मिला? क्या आप लोगों ने डेफिशिएंसीज में ये पढ़ा था कि मल्टीपल टैक्सेस होते हैं, डबल टैक्सेशन होता है? हाँ जी सर पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। ये देखो यहां पर मिल गया, वही बेनिफिट है, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। तो क्या दोस्तों एक तीर से दो निशाने लगे कि नहीं लगे? एक तीर से दो निशाने। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं उसमें से कुछ तो आपके बेनिफिट्स हो गए ऑफ जीएसटी।
तीसरा इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, चौथा बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, एंड पांचवा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो कहते हैं फर्दर few deficiencies that existed earlier now have turned into benefits after introduction of GST. These points majorly serve both the purposes, that is benefits of GST is equals to deficiencies of earlier indirect taxation system. 1-2 points are still different, the student should take care of that also. तो एक दो पॉइंट अभी भी अलग अलग हैं दोस्तों, जैसे कि बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो इस बार दोस्तों यहां पर बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी डालिए, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, और हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए गाइस। सिर्फ मैं हेडिंग लिखने बोल रहा हूं, द वन दैट हैज बीन हाइलाइटेड विद ऑरेंज कलर गाइस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, mitigation of ill effects of cascading, increase in government revenue, elimination of multiple taxes and double taxation, and boost to make in India initiative. लिखिए guys, I'm giving you 1 minute, everybody should write it down. It's important that we write it down. The more we write it down, the better it becomes. जितना ज्यादा लिखोगे उतना बेहतर होता चला जाएगा दोस्तों, मैं आपको वादा करता हूं। लिखा लिखा गाइस, लिखा एवरीवन। लास्ट पॉइंट है बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आ जाओ गाइस, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। इससे जुड़ा हुआ दोस्तों पहले क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछते स्टेट एनी 4 टैक्सेस दैट हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी ना, वो पूछते हैं दोस्तों, ध्यान से मेरी बात देखिएगा, वो पूछते हैं स्टेट एनी 4 सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस दैट हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो टोटल 15 है, लेकिन टोटल जो 15 टैक्सेस सब्ज्यूम हुए अंडर द जीएसटी लॉ, उसमें से कुछ टैक्सेस पुराने जमाने में सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। क्वेश्चन में कैसा पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले टैक्सेस हैं उनमें से बताइए कि 4 कौन से सब्ज्यूम हुए थे, या स्टेट गवर्नमेंट वाले टैक्सेस हैं उनमें से बताइए 4 कौन से सब्ज्यूम हुए थे। तो अगर आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूछा है तो यू कैन नॉट राइट वैट, you cannot write taxes on lottery betting and gambling, you cannot write tax on advertisements। समझ रहे हैं गाइस? तो आपको दोस्तों ये याद रखने पड़ेंगे। अब 15 में से मैं मेजरली दोस्तों जो हैं आपके, वो मैं आपको बताऊंगा। जो आपके 15 में से अगर आपने एक का भी याद रख लिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला याद रख लिया या स्टेट गवर्नमेंट वाला याद रख लिया, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों बाकी जो टैक्सेस होंगे वो दूसरे के होंगे। हमें एक वाला तो कंठस्थ याद रखना पड़ेगा गाइस कि ये तो इसी कैटेगरी का। कौन कौन से हैं गाइस? क्या सर हमें लिखना है? यस, प्रिपेयर दिस टेबल गाइस। जब तक मैं साथ साथ पढ़ाते जा रहा हूं, बिकॉज मैं सबके डिटेल में ये नहीं बताने जा रहा हूं कि दोस्तों सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में क्या क्या होता था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में क्या क्या होता था। दोस्तों इस पे अगर मैं चला गया दोस्तों तो अगला 1 महीने हम इसी टेबल पर रह सकते हैं, इतना डिस्कशन का मैटर है इसमें। लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है गाइस, मैं आप लोगों को उस पॉइंट में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो सेंट्रल टैक्सेस दैट हैव बीन सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, सबसे पहला सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सॉरी, दूसरा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा सर्विस टैक्स, चौथा एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, पांचवा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, छठा स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सातवां सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंड आठवां सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर सेंट्रल सेल्स टैक्स तो स्टेट के पास जाता था ना? करेक्ट, अभी भी स्टेट के पास ही बोला था मैंने, पहले भी स्टेट के पास बोला था, लेकिन लॉ मेकर कौन था, कानून किसने बनाया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जाता किसको था? ओरिजिनेटिंग स्टेट को।
तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल सेल्स टैक्स, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, was a tax levied by the central government, the answer to which is yes, true. But the central sales tax was collected by the originating state, जहां से सामान का उत्पाद, मतलब जहां से सामान का स्टार्टिंग हुई उसके पास जाता था। ऑल राइट गाइस, स्टेट गवर्नमेंट वाले वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स ऑल फॉर्म्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज जो आज एंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है वो आज भी चलेगा, लेकिन अदर देन दैट अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सोच रही है एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का तो नहीं, स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएगी। लेट्स से अगर कोई वाटर पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क है जहां झूले वगैरह होते हैं, वहां पर जाते हैं तो आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है। तो वो एंटरटेनमेंट टैक्स की जगह आज क्या लगेगा, जीएसटी। पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, जो कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। आज अब उस एंटरटेनमेंट टैक्स की जगह टिकट की प्राइस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, विच विल बिलोंग टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। लेकिन अगर लोकल बॉडीज मतलब लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटी अगर कोई मेला लगाती है तो उस पर आज भी एंटरटेनमेंट टैक्स लग सकता है। ऑल राइट गाइस, तो इन दिस सिनेरियो गाइस ये हमारा 7 पॉइंट है, और 7वां पॉइंट है सेंट्रल स्टेट स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। These are the taxes guys जो सब्ज्यूम करे गए हैं by the state government, all right everyone, यहां तक क्लियर हुआ? तो ये क्या पॉइंट्स हमें लिखने हैं? जी हाँ बिल्कुल लिखने हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पहले आ चुका है, एंड आई वुड नॉट लाइक माय स्टूडेंट्स टू मिस आउट इवन हाफ अ मार्क, स्पेशली इन अ चैप्टर लाइक दिस विच इज सुपर डुपर इजी। बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, तो यहां पर तो हम आधा नंबर भी नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ गाइस, लिखिए गाइस, इनके बारे में हो सकता है मैं आपको बताऊं आने वाले अभी प्रोविजन में, आने वाले अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें कुछ काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी से जुड़ी हुई चर्चा होगी। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसे दोस्तों एक्साइज ड्यूटी के नाम से अभी तक बोल रहे थे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स पे सरकार ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। इसके बारे में अपनी अभी तक पिछले 2 सेशन में छोटी छोटी चर्चा हो चुकी है। सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा हो चुकी है, वैट के बारे में चर्चा हो चुकी है। वैट और सेल्स टैक्स भाई भाई हैं दोस्तों, विद वेरी माइनर चेंजेस। कई बुक्स में आप पाएंगे कि वैट और सेल्स टैक्स को इन्होंने अलग अलग पॉइंट दिया है। पॉइंट नंबर 1 वैट, पॉइंट नंबर 2 सेल्स टैक्स, वो भी ठीक है दोस्तों, बट क्योंकि ये दीज आर लाइक ट्विन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो इन दिस सिनेरियो मैंने साथ में लिखा है। टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, इससे जुड़ा हुआ चैप्टर नंबर 2 में हमें मिलेगा। तो कुछ चीजें हैं दोस्तों जो हमें आगे मिलने वाली हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट कि सर आप इसे डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा रहे। खैर आज तक ये नहीं पूछा गया कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बारे में डिटेल में बताइए, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक कानून था, आज जो कानून है वो जीएसटी है। लिखा गाइस एवरीवन? डन। चलो जी, मूविंग ऑन गाइस। Which of the following state taxes have been subsumed under GST? आपसे क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन से स्टेट टैक्सेस सब्ज्यूम हुए हैं। स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी नो, वैल्यू एडेड टैक्स यस, सेंट्रल सेल्स टैक्स नो। सेंट्रल सेल्स टैक्स कानून बनाने वाला कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ऑल ऑफ द अबव नो, द करेक्ट आंसर इज बी, वैल्यू एडेड टैक्स। क्योंकि अब ये तीनों टैक्सेस वैसे जीएसटी में सब्ज्यूम हुए, लेकिन ए और सी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून था। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
state taxes have been subsumed under GST. इनमें से कौन से ऐसे टैक्सेस थे जो पहले स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, अब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए हैं? लिस्ट द सेंट्रल लेवी सब्ज्यूम्ड अंडर द जीएसटी लॉ. अब 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया अगर ऐसा कि भैया आपको सेंट्रल लेवीज बताने हैं, सेंट्रल लेवीज, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया कानून बताना है. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, जो कि अब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए, तो यू विल हैव टू राइट पॉइंट्स दोस्तों, नॉट आउट ऑफ 15 बट आउट ऑफ 8, क्योंकि 15 तो टोटल पॉइंट्स थे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 8 पॉइंट थे, तो उन 8 के बारे में लिखना है, उन 8 से जुड़ा हुआ पॉइंट लिखना है. डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा. स्टूडेंट शुड बी केयरफुल answering this question and should clearly remember the central levies that has been subsumed. The student should write number of points depending upon the marks allotted to the question. All right, guys. आ जाओ भाई, constitutional provisions. Constitutional provisions. आ जाओ. इंडिया हैज, अब ये लास्ट टॉपिक है दोस्तों इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गाइस, एंड देन विल बी डन विद द चैप्टर. तो इन द फर्स्ट 42 ऑड मिनट्स गाइड्स हम लोगों ने 3 चीजें करी: कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी एंड टैक्सेस सब्ज्यूम्ड. एंड नाउ इन द नेक्स्ट 1 hour और सो वी आर गोना टेक केयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. बहुत मजा आएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को करते चलेंगे, डिस्कस करते चलेंगे, बातें करते चलेंगे, समझते चलेंगे गाइस. ओके, and you will be able to understand what these points are, why constitutional provisions, why was there a requirement of constitutional amendment, constitutional amendment होने की वजह से फिर कौन सा आर्टिकल आया, उस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है रिगार्डिंग जीएसटी लॉ, ये सारी चीजें हमें देखनी है. कहते इंडिया हैज 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब 3 लोग आपसे अलग अलग तरीके से टैक्स कलेक्ट करते हैं. पहला, यूनियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सीजीएसटी जाता है, आईजीएसटी जाता है, यूटी जीएसटी जाता है, होता है कि नहीं दोस्तों? इनकम टैक्स जाता है दोस्तों, वो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या जाता है? एसजीएसटी जाता है दोस्तों, एसजीएसटी जाता है. टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जाता है. ये अलग अलग टैक्सेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं. एंड लोकल गवर्नमेंट, अब सर ये कौन सी गवर्नमेंट होती है लोकल गवर्नमेंट? इसे बोलते हैं हमारी लोकल अथॉरिटी. जैसे कि आप लोग देखते होंगे जिस भी राज्य में होंगे वहां की एक म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है. जैसे दिल्ली में मेरा ऑफिस है तो हमारे यहाँ एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली. वैसे ही दोस्तों यूपी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी. आप लोगों ने सुना होगा हाउस टैक्स पे करते हैं, हाउस टैक्स, हाउस टैक्स ये किसे पे करते हैं? दिस इज व्हाट वी पे टू द लोकल अथॉरिटी, जिसे अपन बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट. ओके गाइस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं म्युनिसिपल अथॉरिटी. ऑलराइट गाइस, और ये है हमारी स्टेट गवर्नमेंट एसजी. हमारी जो संविधान है, संविधान ने तीनों के बीच में पावर्स बांट दी है कि भैया आप अपने अपने तरीके से टैक्सेस लिवाय कर सकते हैं. Power to levy taxes and duties is distributed among these 3 tiers in accordance with the provisions of the Indian Constitution. Power to levy taxes and duties is distributed among these 3 tiers. कौन-कौन से? Union government, state government and local government. Power to levy tax and collect taxes, whether direct or indirect, emerges from the Constitution of India. और वो कौन सी दोस्तों पावर, कौन से आर्टिकल ने पावर दी है? मैंने कल भी बताया था, आर्टिकल 246 ने, आर्टिकल 246 ने पावर दी है कि वो पावर किसे दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को एंड लोकल अथॉरिटीज को, कि आप भारत देश में टैक्सेस लगा सकते हैं वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. एनी लॉ नॉट इन कंफर्मिटी, any law not in conformity with the constitution is illegal and void. any law, कोई भी कानून दोस्तों जो कि इलीगल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, उसे इलीगल एंड वॉइड बोला जाएगा गाइस, और वो उसका कोई अस्तित्व माना ही नहीं जाएगा.
significant provisions of constitution relating to taxation are as under। दोस्तों जहां पर मुझे लगेगा कि आप लोग ये लिखिए वहां पर मैं आप लोगों को लिखने के लिए बोल दूंगा, इसलिए हड़बड़ी में सब कुछ लिखने की कोशिश नहीं करिएगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जिनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी लिखने की, अपन पहले उन्हें लिखेंगे। आर्टिकल 265 कहते हैं एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, जब तक कोई कानून नहीं बनाओगे तब तक ना तो आप कोई टैक्स लिवाई करेंगे ना कलेक्ट करेंगे। तो आर्टिकल 265 ने तो क्लियर कट बोला है कि आप बंदूक दिखा के, छुरी दिखाकर या गुंडागर्दी कर कर, ब्लैकमेल करके, किडनैप करके आप टैक्स नहीं वसूल सकते। आपको उस टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ कानून बनाना पड़ेगा, और कानून बनाएंगे दोस्तों तब जाकर ही आप टैक्स को लिवाई कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 245 ने क्या बोला कि आपका कानून कहां कहां तक लागू होगा। आर्टिकल 245 ने बताया कि आपने कानून तो बना दिया, लेकिन आपका कानून क्या पाकिस्तान में लागू हो गया? नहीं। क्या आपका कानून दोस्तों कनाडा में लागू होगा? नहीं। तो एक्सटेंट ऑफ लॉस कि आपका जो कानून बनाया गया है वो कहां तक लागू है। कहते हैं एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। कहते हैं पार्लियामेंट में मेक लॉज for the whole or any part of India, whereas legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state। तो कहते हैं जो पार्लियामेंट है हमारी देश की से रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वो कानून बनाएंगी दोस्तों वो होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया पे लगेगा, या तो होल ऑफ इंडिया पे लगेगा या एज द केस दे में डिसाइड, एज द केस द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसाइड कि ये वाला कानून पूरे देश में लागू होगा, लेकिन आसाम पे, अरुणाचल प्रदेश पे, त्रिपुरा पे, मिजोरम पे लागू नहीं होगा। तो ये पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसलिए क्या लिखा जाता है? पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, वेयर एज लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, जिसे अपन बोलते हैं विधानसभा, वो जो कानून बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे? एनी पार्ट ऑफ द स्टेट और द होल ऑफ द स्टेट। यूपी के लिए कानून बनाया, लेकिन वो कानून ग्रेटर नोएडा पे लागू नहीं है, या नोएडा पे लागू नहीं है, या आगरा पे लागू नहीं है। ये यूपी की सरकार योगी जी डिसाइड करेंगे एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएस डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 246 मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? मैटर ऑफ लॉ made by parliament and by the legislature of states। हाँ जी गाइस, क्या आर्टिकल 246 से पावर मिली है? हाँ जी, दिस आर्टिकल एम्पावर्स, पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप भारत देश में टैक्सेस लगा सकते हैं, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आर्टिकल 246 क्या देता है? पावर। तो आर्टिकल 265 क्या बोलता है कि जब तक कानून नहीं बनेगा ना तो आप टैक्स लेवाई करेंगे ना कलेक्ट करेंगे। आर्टिकल 245 क्या बोलता है? एक्सटेंट कि आपने जो कानून बनाया वो कहां तक एप्लीकेबल है, टू विच एक्सटेंट विल योर लॉ गो। एंड आर्टिकल 246 बोलता है दोस्तों कि हमने पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भारत देश में टैक्स लिवाई कर सके। आइए गाइस, आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट मेंशन करी गई। यूनियन लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, स्टेट लिस्ट जो कि दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों मिलकर अगर कोई कानून बनाए तो। आप लोग जानते हो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। क्या इन्होंने तो कोई भी मिलकर कानून बनाया? हाँ सर, जीएसटी नहीं, जीएसटी में भी इनके अलग अलग कानून हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीजीएसटी एक्ट बनाया, आईजीएसटी एक्ट बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने एसजीएसटी एक्ट बनाया। और वैसे भी दोस्तों जीएसटी से जुड़ा हुआ आर्टिकल 246 में नहीं आता, जीएसटी से जुड़ा हुआ आता है आर्टिकल 246A, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं इन लेट्स से 15 मिनट्स। तो 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 कंटेन्स 3 लिस्ट हैं जो कि नीचे लिखी गई हैं, अंडर विच द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज फॉर लिवाइंग टैक्सेस इन इंडिया। पहला यूनियन लिस्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है। कहते हैं द पार्लियामेंट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री। पावर टू लिवाई टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर।
एंड टैक्सेस लिवाइड कौन कौन से हैं? इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी गाइस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जो आज भी आर्टिकल 246 की पावर के तहत सरकार ने बनाया। नेक्स्ट, स्टेटलेस लिस्ट नंबर 2, स्टेटलेस लिस्ट नंबर 2 ये स्टेट गवर्नमेंट की है गाइस। The legislature of any state has an exclusive right to make laws in respect of that entry. क्या है दोस्तों, किसके पास है? द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पावर टू लिवाई टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास गाइस। और ये कौन से टैक्सेस लगाते हैं? टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक्स। देखा था ऊपर पड़ा था ना कि आज की तारीख में भी चरस गांजा पे, चरस गांजा पर दोस्तों क्या लग रहा है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है। तो वो कहां से आया दोस्तों? ये लिस्ट नंबर 2 से उन्होंने पावर ली। वैसे ही अगर आपको याद होगा कि टोबैको जीएसटी के साथ साथ तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी आ रहा है। तो टोबैको पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो अभी भी आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल के पार्ट नंबर 1 लिस्ट नंबर 1 के तहत है। नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, दोनों मिलकर लगाएंगे, दोनों मिलकर एक ही कानून बनाएंगे दोस्तों। सरकारों ने मना कर दिया। सरकार कहता है भैया ये कलयुग है, कलयुग, यहां भाई भाई से लड़ रहा है जमीन जायदाद के लिए, पैसों के लिए। हम तो फिर भी सरकारें हैं, हम तो कभी भी पलट जाती हैं, बदल जाती हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट आई है कि भैया दोनों मिलकर लगाएंगे, लेकिन हाउएवर दोस्तों वो दोनों मिलकर कोई भी ऐसा टैक्सेशन से जुड़ा हुआ कानून नहीं है, टैक्सेशन से जुड़ा हुआ एक भी ऐसा कानून नहीं है दोस्तों जो लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट में आया। द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट हैज एन एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लगाएंगे, लेकिन टैक्सेस लिवाइड जीरो, टैक्सेस लिवाइड के नाम पर जीरो है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? अब आप लोगों को मैं लिखने के लिए दूंगा गाइस, बिफोर वी एक्चुअली हेड ऑन टू गाइस आर्टिकल 246 है। चलो एक ये पॉइंट अब कर लेते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। संविधान में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी, जिसके बारे में एक डिस्कशन हमारा पिछले सेशन में भी हुआ था। संविधान में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ी सर? क्योंकि पुराने आर्टिकल 246 से जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर मिली थी, जिसके बेसिस पर वो टैक्सेस ऑलरेडी लगा रहे थे, जीएसटी ने आके जो बात करी वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी टू द थिंग्स दैट वर ऑलरेडी हैपनिंग। तो अगर आप संविधान के किसी प्रोविजन के खिलाफ जाएंगे तो उसे तो असंवैधानिक माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल एंड वॉइड। तो इसीलिए हमें संविधान में जाके बदलाव करना पड़ा कि जो संविधान में आर्टिकल 246 से पावर मिल रही है उससे भी बड़ी पावर हमें किसी को देनी पड़ेगी। इसीलिए आर्टिकल 246 ए आया, और आर्टिकल 246 ए की पहली लाइन में ये लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246, कि आर्टिकल 246 में जो लिखा है वो भाड़ में जाए। अगर तराजू में तोलना पड़े कि एक जगह आर्टिकल 246 है, एक जगह आर्टिकल 246 ए है, तो आर्टिकल 246 ए का पलड़ा भारी रहेगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऑलराइट, क्योंकि आर्टिकल 246 ए इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑलराइट गाइस, अब इधर देखिएगा, कहते हैं बिफोर जीएसटी पावर ऑफ टैक्सेस वाज असाइन्ड टू ईदर द यूनियन रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट सब्जेक्ट वाइज अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। While the center was empowered to tax goods up to the production or manufacturing stage, the states had the power to tax good at distribution stage. The union could tax services. Central government services पर भी tax लगाती थी, knowing called the service tax, using residuary powers, but state could not. State नहीं लगा सकती थी। कहते हैं introduction of GST required, ध्यान से देखिएगा, introduction of GST required amendment in the constitution so to enable integration of excise duty, state VAT, certain state specific taxes and service tax into GST to empower both center
and states to levy and collect it. The introduction of GST required both amendment in the constitution as to enable integration of excise duty, state VAT, सबको इंटीग्रेट करना था, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं था विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए क्या लेकर आया गया दोस्तों, therefore the constitution 101st amendment act 2016 was given birth. ये जो 122nd अमेंडमेंट बिल था वही ना राठी जी? हाँ जी, 122nd अमेंडमेंट बिल जब वो पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट की असेंट मिली, तो वो बन गया 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016. The bill received assent of the president. The bill received assent of the president on 8 September 2016. इसके बारे में हमारा पहले भी ये लाइन लिखी हुई थी कि बिल की असेंट मिल गई थी प्रेसिडेंट से ऑन द 8th of September 2016, और तब वो जाकर कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 बना था. All right guys, everyone clear about it? ये पॉइंट आपको समझ में आया गाइस? अब इसमें से ना मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको होमवर्क में क्या लिखना है. होमवर्क में क्या लिखना है गाइस, लास्ट में बताऊंगा आज की होमवर्क में क्या लिखना है. वील मूव ऑन गाइस, हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे. आर्टिकल 246A, आर्टिकल 246A, ओ हो. आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू GST. पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू GST. अब ध्यान से देखना दोस्तों, आर्टिकल 246A की पहली लाइन में ही क्या बोला है. अच्छा, क्या हेडिंग से समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है? हेडिंग से समझ में आया गाइस क्या कहना चाहता है? पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. पावर देंगे कि आप GST से जुड़ा हुआ कानून बना सके. आजा भाई. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254. आर्टिकल 246 और 254 में जो लिखा है भाड़ में जाए, हमारे को इनसे मतलब नहीं है. हम इनके डैडी हैं, हम इनके पापा हैं, हमारी बात सुनी जाएगी. तो आर्टिकल 246 से जो पावर फ्लो कर रही थी, कह रहे बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो. 246 की बात सुनो. Notwithstanding anything contained in Article 246 and 254. सर चलो 246 तो आपने समझा दिया कि 246 क्या होता है. 246 आपने बता दिया कि ये पहले पावर देता था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भारत देश में टैक्सेस लगा सके, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. लेकिन ये 254 क्या है? 254 तो हम पहली बार सुन रहे हैं. बताता हूं. सरकार ने कहा कि देखो भैया, जो आर्टिकल 246 से पावर मिली हुई है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भारत देश में टैक्सेस लिवाई करते हैं. भारत देश में क्या लिवाई करते हैं गाइस? टैक्सेस लिवाई करते हैं. अगर वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, लेट्स से दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया और उस लॉ की इंटरप्रिटेशन लेट्स से यहां से लेकर यहां तक जाती है. मैं एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं. और एक दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया, जिसकी इंटरप्रिटेशन यहां से लेकर यहां तक जाती है. तो अगर आप देखोगे तो जो मैंने दो लाइनें बनाई हैं उसमें कुछ पैच ऐसा है दोस्तों, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कुछ कह रही है. यहां से देखिएगा, मैं उसको बॉक्स में डालता हूं, और स्टेट गवर्नमेंट की बात कुछ कह रही है. सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कुछ कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट की बात कुछ कह रही है. मतलब आपस में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. मतलब दिस इज अ पॉइंट जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है. गाइस. सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है भैया मेरा कानून माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कहती है मेरा कानून माना जाएगा ऑन दीज मैटर्स, जहां पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है.
तो आर्टिकल 254 ने सुप्रीमेसी पावर दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, सुप्रीमेसी पावर दे दी गई, सुप्रीमेसी पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अब किसकी मानी जाएगी यहां पर? पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इस वाले चीज को लेकर अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की? तो जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा आर्टिकल 254 यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात मनवा सकती है। यह है आर्टिकल 254। क्योंकि दोस्तों जो कानून बनाए जाते हैं मद्देनजर सारी चीजों को रखते हुए बनाए जाते हैं, लेकिन आफ्टर ऑल इट इज मेड बाय ह्यूमंस एंड ह्यूमंस आर बोर्न टू ह्यूमंस आर प्रोन टू मिस्टेक्स गाइस। मतलब कुछ कानून ऐसे बनेंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरप्रिटेशन में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो सरकार ने क्या बोला कि अगर कोई ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून और स्टेट गवर्नमेंट का कानून आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को माना जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के कानून को बैक स्टेप लेना पड़ेगा। ऑल राइट, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का कानून ही पूरा का पूरा रद्द कर दिया, जहां तक लेवल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। ये आर्टिकल 254 ने लिखा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हो सकता है आप ऐसा बोलो कि राठी जी ये जो कानून बनाने वाले थे ना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पहले कानून आया था, जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ था वो पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था। तो यार जो पहले आया उसकी बात मानो ना यार, जो बाद में आया बाद में आने के बाद कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है आप उसकी बात मानने को राजी हैं? हाँ जी ऐसा ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून स्टेट गवर्नमेंट के कानून से पहले आया था या बाद में आया था। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है बिटवीन द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द लॉ मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द लॉ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। दैट इज आर्टिकल 254। तो कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल्स 246 एंड 254। आर्टिकल 246 और 254 में जो लिखा है भाड़ में जाए। पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां देखिएगा, रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट and subject to clause 2 the legislature of every state, मतलब state government have power to make laws with respect to goods and services tax imposed by the union or by such state। क्या बोला है दोस्तों? बोला गया है कि पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर, उनके पास पावर है कि वो भारत देश में टू मेक लॉ बना सकें विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स imposed by the union or by such state। All right guys, everyone clear about it? अब बढ़ते हैं आगे। सेकेंड क्लॉज में क्या लिखा है? कहते हैं पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। एक्सक्लूसिव पावर मतलब 100% पावर किसके पास है दोस्तों? 100% पावर किसके पास है? 100% पावर इज with the central government। parliament representing the central government guys has exclusive power to make laws with respect to goods and services tax where the supply of goods or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य बेचा गया है, इंटरस्टेट किया गया है ट्रांजैक्शन, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो उससे जुड़ा हुआ कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसीलिए गाइस जब इंटरस्टेट आज की तारीख में होता है तो अपन कौन सा टैक्स लगाते हैं सर? आईजीएसटी लगाते हैं, करेक्ट। तो क्योंकि जब इंटरस्टेट होता है और इंटरस्टेट पर आईजीएसटी लगता है, और मैंने आपको बताया है आईजीएसटी एक्ट बनाने वाला कौन है? सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान से देखिएगा गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टैक्स लिवाई करती है प्लस कलेक्ट करती है, और जो कलेक्ट करती है उसमें से कुछ पोर्शन वो रिटेन करती है गाइज अपने लिए,
और कुछ पोर्शन शेयर करती है विद डेस्टिनेशन स्टेट। कुछ पोर्शन वो शेयर करती है विद डेस्टिनेशन स्टेट। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? समझ में आया गाइस? तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में जो टैक्सेस लगेगा उससे जुड़ा हुआ कौन बनाएगी? पार्लियामेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एक्सप्लेनेशन कहते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेफर टू इन क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 279A shall take effect from the date recommended by the GST Council। अब ये क्या मतलब हुआ राठी जी, क्या बोल दिया आपने? मैं अभी बताता हूं। कहते हैं आर्टिकल 279A के 5वें क्लॉज में कुछ गुड्स या सर्विसेज मेंशन करे गए जिन पे जीएसटी लिवाई किया जाएगा जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। मतलब आज की तारीख में उन पर जीएसटी नहीं लगता, आज की तारीख पर उन पर जीएसटी नहीं लगता। मैं आपको लेकर चलता हूं वो कौन से हैं। आर्टिकल 279A के 5th क्लॉज, ये देखो आर्टिकल 279A, ये नजर आ रहा है जीएसटी काउंसिल, और उसका 5th क्लॉज ये रहा, जिन पर जीएसटी विल बी लिवाइड एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम। कहते हैं द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल शैल रेकमेंड द डेट on which GST be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, natural gas and ATF aviation turbine fuel। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसे अपन पीपीज के नाम से जानेंगे। 5 पीपीज, पीपी और छोटा एस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? नाम याद रखिएगा, इस 1 मार्कर में आ सकता है। कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या आउट ऑफ विच इनमें से कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी शैल बी लिवाइड एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम व्हेन द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स। कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल जो गाड़ी में डलता है, मोटर स्पिरिट पेट्रोल जो गाड़ी में डलता है, नेचुरल गैस एंड एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हवाई जहाज में डलता है। इन्हें ये सारे क्या हैं? हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Everyone clear about it? Every one of you clear about this point? तो जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है, रेकमेंड करेगी इन 5 पे। तो सर इन 5 के लिए ऐसा बोला जा सकता है अभी नहीं बाद में, करेक्ट। जैसे अल्कोहल में अपन ने क्या बोला था? अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कभी नहीं। आज भी जीएसटी नहीं है और आगे भी जीएसटी नहीं होगा, लेकिन इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर क्या बोलेंगे? अभी नहीं बाद में। अभी नहीं है लेकिन बाद में लगेगा। कब? when the GST council deems that it is the right time to bring these 5 products under the ambit of GST law। तो आर्टिकल 246A को अपन रिवाइज करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 246A ने पावर दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भारत देश में जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बना सके, जिसके क्लॉज नंबर 1 में बोला गया कि 246 और 254 को मारो लात, 246 और 254 को करो इग्नोर, और बोला कि पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैज द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। आप कानून बनाइए जीएसटी से जुड़ा हुआ, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या उनसे कौन से कानून बनाए? सीजीएसटी बनाया, यूटीजीएसटी बनाया। स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा कानून बनाया? एसजीएसटी एक्ट बनाया। फिर जब हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचे तो उन्होंने कहा क्लॉज 2 में कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। Parliament has exclusive power to make laws with respect to GST where the supply of goods and or services or both takes place in the course of interstate trade or commerce। interstate होगा जब एक राज्य से दूसरे राज्य होगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स कलेक्ट करेगी। हाँ, ये बात उतनी ही सच है कि जो कलेक्ट करके सारा अपनी जेब में नहीं डालेगी, कलेक्ट जो करेंगे उसमें से छोटा सा पोर्शन, मतलब थोड़ा पोर्शन खुद रिटेन करेंगे और थोड़ा पोर्शन डेस्टिनेशन स्टेट को देंगे। मतलब जिस स्टेट में सामान दिया गया, जिस स्टेट में सर्विसेज दी गई, उस स्टेट को।
एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई, आर्टिकल 254, आर्टिकल 254 गाइस डील्स विद द सुप्रीमेसी। ये वाला पॉइंट पढ़िए गाइस, ये वाला पॉइंट, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। एक सेकेंड, ये पॉइंट पढ़िए। पढ़ा गाइस? एवरीवन पढ़ा आप लोगों ने? कहते हैं आर्टिकल 254 डील्स विद द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। कहते हैं वेयर देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, मतलब मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, whether passed before or after the law made by the legislature of such state shall prevail over the law made by legislature of such state to such inconsistent extent। to such inconsistent extent का मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका जो लॉ है ये प्रिवेल करेगा, सुप्रीमेसी पावर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को, टू द लॉ to the extent of such inconsistency, जहां तक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है वहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट आर्टिकल 246A इन सिंपल वर्ड गाइस, आ जाओ भाई। कहते हैं इट गिव्स पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। जीएसटी से जुड़ा हुआ दोस्तों, इट गिव्स पावर देते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि भारत देश में आप जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बना सकें। हाउएवर दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर है, 100% पावर है जब बात आती है टू मेक लॉज इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट 5 petroleum products, everybody, falling under clause 5 of article 279A shall fall under the ambit of GST from the date as recommended by the GST Council। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से थे? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी लगाया जाएगा एट अ स्टेज जब जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगी। एट प्रेजेंट ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑन देम। ऑलराइट गाइस, आ जाओ। लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स किसको करती है? स्टेट गवर्नमेंट को। लिस्ट 2 पावर किसे करती है? अभी ऊपर पढ़कर आए थे दोस्तों इन द टेबल। लिस्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट एंट्री, इट इज स्टेट गवर्नमेंट। हैज स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट हैज द हटा दीजिए। आ जाओ भाई। Why was there a constitutional amendment required to levy GST in India? कोई आप में से बता सकता है why was there a requirement कि हम संविधान में जाके बदलाव करें? संविधान से तो आर्टिकल 246 से पावर थी ऑल्सो सर, क्योंकि जो आर्टिकल 246 से पावर थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरीके से टैक्स लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से टैक्स लगाती थी। अब हम दोनों को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे थे, दोनों को मर्ज करने की बात कर रहे थे, और जीएसटी के कानून, पुराने जो कानून बने हुए थे, पुराने संवैधानिक प्रोविजंस थे, उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। और आप संविधान को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं, संविधान सबसे उच्च है हमारे देश में।
तो हमें संविधान में जाके बदलाव करना पड़ा, संविधान में जाके अमेंडमेंट डालनी पड़ी, जिस वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करा जा सका। The main purpose behind constitutional amendment was to integrate central and state taxes. Students should write around this point in simple language with example. खैर आज तक दोस्तों इस बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब आपसे पूछा गया डिस्कस आर्टिकल 246A। कहते हैं स्टूडेंट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल। अगर आपसे कोई बोला जाए आर्टिकल 246A के बारे में बताइए, तो आर्टिकल 246A क्या है? सर ये पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टू लिवाय टैक्सेस, तो वही सबसे पहले हेडिंग देनी है आर्टिकल 246A, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, फॉलोड बाय टू क्लॉजेस, जो आपके दो क्लॉजेस है। क्लॉज नंबर 1 क्या है दोस्तों? क्लॉज नंबर 1 क्या है कि notwithstanding anything contained in article 246 and 254, the parliament and subject to clause 2, the legislature of every state has power to make laws with respect to GST imposed by the union or by such states। ये आपका पहला पॉइंट आया। दूसरा, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, 100% पावर है दोस्तों कि वो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ा हुआ कानून बना सके। तो यहां एडवाइस दी गई है, अगर मेरे को ऊपर वाला एग्जैक्टली छापना होता तो कोई मतलब नहीं रहता, मैंने सोल्यूशन नहीं एडवाइस दिया है। ऑलराइट गाइस, अब आई वुड अर्ज यू गाइस कि आर्टिकल 246 आप लोग यहीं पूरा का पूरा लिखेंगे दोस्तों। मैं जानता हूं दोस्तों बच्चों को बहुत आलस आता है लिखने में, लेकिन अगर मैंने होमवर्क में लिखने के लिए दे दिया तो मैं श्योर हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी राइटिंग दिस, लिखेंगे ही नहीं गाइस। तो आप लोग लिखिए गाइस, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं गाइस। आप लोगों के पास भी ई बुक्स हैं, ई बुक्स के थ्रू भी लिख सकते हैं आर्टिकल 246A, और उसके बाद ये दो पॉइंट्स फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन गाइस, फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन। लिखिए गाइस, मैं आपको 3 मिनट देता हूं लिखने के लिए, फटाफट। एवरीबडी शुड राइट इट डाउन।
हाँ जी गाइस, डन। लिखा अखिलेश बेटा, लिखा। हाँ जी, चलो जी, मूविंग ऑन गाइस, अगले आर्टिकल पर, आर्टिकल 269 है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा दोस्तों, तो उस पर कैसे टैक्स कलेक्ट करे जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है गाइस ये भी। वैसे आई वाज थिंकिंग गाइस, एक सेकंड में आप लोगों से ओपिनियन चाहूंगा, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा मेरे को भारी भरकम लग रहा है। आज हमने अलग अलग पॉइंट्स करे, जिसके बाद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कर लिए, एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes. I won't mind continuing, but what I was thinking was कि हम constitutional amendments article 269A, article 279A along with questions practice अगले सेशन में करें। उससे क्या होगा दोस्तों, सर क्या शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेट हैंडल GST for transaction within their state borders and parliament handles GST transaction across state borders. No अखिलेश, ना ना ना, विद इन द स्टेट होता है, विद इन द स्टेट होता है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है विद द नेम CGST। तो जस्ट स्टेटिंग कि जो विद इन द स्टेट होगा उसमें स्टेट के पास जाएगा, और इंटर स्टेट में जो होगा वो सेंट्रल के पास जाएगा, वो कहना सही नहीं। क्योंकि अगर विद इन द सेम स्टेट होता है, एमपी का एमपी में बेचा गया, तो CGST सबसे पहले लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट आती है हमारा आधा, स्टेट गवर्नमेंट आती है हमारा आधा। लेकिन जब इंटर स्टेट होता है तो सरकार ने कहा कि कौन से स्टेट को टैक्स जाए। ध्यान से मेरी बात सुनना। होता क्या था दोस्तों, जब इंटर स्टेट होता ना, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो स्टेट्स के बीच में लड़ाई होती थी। भैया मेरे स्टेट से सामान गया है, मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा। दूसरा कहता था मेरे स्टेट में पहुंचा है, मैं कलेक्ट करूंगा। तीसरा स्टेट आके कहता था मेरे स्टेट से सामान गया है, हम बेचने वाले और खरीदने वाले नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट ने अलाउ किया, आपने हमारे स्टेट से लेकर गए, इसलिए हमें टैक्स मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है चिंटू मिंटू पिंटू, ये लड़ाई मत करा करो भैया। इसीलिए इंटर स्टेट से जुड़ा हुआ सरकार ने क्या बोला, कानून हम बनाएंगे। आप तो तीनों आपस में लड़ रहे हो, इंटर स्टेट से जुड़ा हुआ कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से कुछ हिस्सा रखेगी और कुछ हिस्सा एक स्टेट को देगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, डेस्टिनेशन स्टेट को। इसीलिए जीएसटी इज ऑल्सो नोन एज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जहां पर दोस्तों ये प्रोडक्ट जाके कंज्यूम हो रहा है, यूज हो रहा है, उस स्टेट को जाके टैक्स मिलेगा। ऑलराइट गाइस, तो व्हाट आई एम गोना डू इज गाइस, मैं आर्टिकल 269A एंड आर्टिकल 279A, इस पर भी हमारा काफी अच्छा डिस्कशन होने वाला है, अलोंग विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में करने दूंगा, वो मैं आपको अगले सेशन में करवाऊंगा गाइस, कल के सेशन में ही। और कल हम इस चैप्टर को फाइनली अलविदा करेंगे। मैं चाहता तो दोस्तों आज भी कंप्लीट करा सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि वी डू इट इन सच अ फैशन कि हर बच्चा जुड़ा हुआ है उसको 100% अंडरस्टैंडिंग हो ऑफ व्हाट द प्रोविजन इज ट्राइंग टू कन्वे, रादर देन जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट द सिलेबस, भागे जा रहे हैं, नो, नथिंग लाइक दैट। देयर विल बी सेशंस जब मैं 2.5 घंटा भी पढ़ाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि यार आज के सेशन में कुछ ऐसा कंक्लूसिवली हमने नहीं सीखा है, आज के सेशन में हमने ज्यादा एग्जांपल्स करे, तो मैं वहां पर दोस्तों आपके 2.5 घंटे के भी सेशन लूंगा। डू नॉट वरी अबाउट इट। इनकम टैक्स में तो इतना ज्यादा लिखना पड़ता है, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, वहां तो 2 घंटे का बेयर मिनिमम सेशन होता है। ऑलराइट गाइस, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। वी विल हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड इनटू टुडेज सेशन। हमने जो आज के सेशन में किया उसका एक रिकैप कर लेते हैं गाइस। और आज के सेशन में सबसे पहले हम लोगों ने किया कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। कहते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, एक वैट है दोस्तों, एज इट ऑफर्स कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, जो कि आपका चलता जाता है कहां से, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। उसके बाद दोस्तों जीएसटी डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी बताया। आपने टैक्स किस पे किया, आपने टैक्स किस पे कलेक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजीएसटी कलेक्ट किया है, सीजीएसटी पे किया है, सीजीएसटी में से आप सीजीएसटी माइनस कर सकते हैं। लास्ट, टैक्स का फाइनल बर्डन फॉल्स ऑन द कंज्यूमर, कंज्यूमर पर आकर फाइनल बर्डन आ जाता है, एंड दे हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ टैक्स। ओके गाइस,
नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस आप फटफट दोस्तों जीएसटी में कर सकते हैं, इजी एज कंपेयर टू द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग, कैस्केडिंग जो होता था, टैक्स ऑन टैक्स होता था, वो जीएसटी ने खत्म करने की कोशिश करी। इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू, एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन, एंड लास्ट पॉइंट गाइस आपका बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बूस्ट टू मेक इन इंडिया कैंपेन। नेक्स्ट, टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस सब्ज्यूम्ड हुए हैं? 8 सेंट्रल टैक्स, 7 स्टेट टैक्स। कई जगह टीचर्स ने 17 टैक्सेस बताया, जो 17 टैक्सेस सब्ज्यूम हुआ है, जिसमें उन्होंने वैट और सेल्स टैक्स को अलग लिख दिया, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स या परचेज टैक्स को अलग अलग लिख दिया, तो वो 17 टैक्सेस हो गए। वैसे 15 ही हैं मेजरली। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, कौन से थे दोस्तों जो अब सब्ज्यूम हो गए हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंड गाइस सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद स्टेट टैक्स, ये कौन से हैं दोस्तों? वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट लोकल बॉडीज, एंड स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर पहुंचे, जहां हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर में टैक्स कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। उसके बाद दोस्तों हम पहुंचे आर्टिकल 265 पे, जिसने बोला कि जब तक कानून नहीं तब तक टैक्स नहीं। आर्टिकल 245 ने बताया कि ये कानून कहां कहां तक लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू हो सकता है या पार्ट ऑफ दैट, और स्टेट गवर्नमेंट का कानून स्टेट में लागू होगा और पार्ट ऑफ द स्टेट, as may be decided by the respective governing authority. आर्टिकल 246 ने बताया कि हमने पावर दे रखी है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भारत देश में कि वो टैक्सेस लगा सके, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। लिस्ट नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू लिवाई टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी वगैरह आता है, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको भी आता है। स्टेट टैक्स, स्टेट लिस्ट दोस्तों जो लगाती हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, जिसमें टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स। कॉन्करेंट लिस्ट दोनों मिलकर लगाएंगे, लेकिन दोनों मिलकर कोई भी टैक्स नहीं लगाते हैं, को मतलब दोनों का मिलाकर एक कानून नहीं है। ओके ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा अलग कानून है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग कानून है। नेक्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई गाइस? व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? फटाफट बताइए। संविधान में बदलाव करने की ये जरूरत पड़ गई कि जो पुराना टैक्सेशन सिस्टम से जो पावर्स थी, जो चल रहा था, जीएसटी वाज कॉन्ट्राडिक्टिंग टू दैट, जीएसटी वाज ट्राइंग टू इंटीग्रेट द सेंट्रल एंड स्टेट, जो पहले नहीं था। तो इन दैट केस दैट वाज द रिक्वायरमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। 101st अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 246A से क्या हुआ दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन के 101st अमेंडमेंट एक्ट में क्या लिखा है? आर्टिकल 246 से, और 246A ने क्या दिया दोस्तों? पावर दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भारत देश में जीएसटी से जुड़ा हुआ कानून बना सके। तो notwithstanding anything contained in Article 246 and 254, Parliament and subject to Clause 2, the legislature of every state have power to make laws with respect to GST, goods and service tax imposed by the union or by such state. However, दोस्तों अगर इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स होगा, उसके पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके एक्सप्लेनेशन में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पर जीएसटी शैल बी लिवाइड एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम। और वो लेटर स्टेज ऑफ टाइम क्या है दोस्तों? व्हेन द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स इट। वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन से हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, एटीएफ एविएशन, टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। इन पर अपन क्या बोलेंगे? अभी नहीं, बाद में। ऑलराइट गाइस, अब आपका होमवर्क में आपको क्या लिखना है गाइस? होमवर्क में ये 3 आर्टिकल्स लिखने हैं गाइस। आज का होमवर्क क्या है दोस्तों? आपको ये 3 आर्टिकल्स के बारे में लिखना है। आर्टिकल 265, 245 एंड 246 फॉलोड बाय ये लिस्ट बनानी है। ये लिस्ट भी बनानी पड़ेगी गाइस, ठीक है जी। सर आपने बताया था कि सीजी ने कुछ सेस कंपेंसेशन देने का प्रॉमिस किया था, वो क्या वो अभी भी देते हैं? वो 5 साल के लिए इफेक्टिव था बेटा।
अखिलेश बेटा 5 साल तक सरकार ने कहा था, और कुछ चीजों पर दोस्तों एक्सटेंडेड टाइम रहा। ओके, चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। वे ये तो लिख ही लिया। अच्छा, आर्टिकल 254 सुप्रीमेसी की पावर डील करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अगर कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए कानून, तो in that case, in that scenario, the law made by the central government will prevail over the law made by the state. All right guys, चलो भाई आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेशन। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल के सेशन में इस चैप्टर को फाइनली अलविदा करेंगे गाइस। आर्टिकल 269 है, आर्टिकल 279 है, फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, इसका क्वेश्चन आंसर राउंड आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। तो पहले 1 घंटे में मैं आपको आर्टिकल 269A 279A करवाऊंगा। आधा पौना घंटे में दोस्तों हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे और इस चैप्टर को फाइनली अलविदा कर देंगे गाइस। हर तरीके से इस चैप्टर के पॉइंट्स को कवर अप कर चुके होंगे। ऑलराइट, चलो जी, बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। मजा आया तो प्रेस ऑन द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू जॉइन द बैच ASAP। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर। जो बच्चे बाद में भी ज्वाइन करेंगे उन्हें भी दोस्तों रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, फुल्ली रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।